Welcome, Abhishek Rai. Right? Good evening, sir. Good evening. Now, can you please tell me about yourself? Sir. Good evening, sir. I am Abhishek Rai, currently pursuing BTech from NIT Kurukshetra. I have aggregate of 9.51 up to my seventh semester, and I done my schooling from Sumitra Modern School, where I secured 95.2% in my class 12, 94.2% in my class 10. So during my college, I have completed two intern, one at BIS headquarters New Delhi, and one at IFB Automobile, where I work as a process engineering intern. So in my curriculum, I also done one project that is inventory optimization and layout design. And during this, some of my achievement that I am the branch topper also received the RP Singh Gold Medal from the Governor of Haryana. Okay. So, I'm seeing your resume. You mentioned in the in experience blog that is you did the intern in Bureau of Indian Standard and IFB Automotive Private Limited, right? Okay. So, my first question is, how does a window regulator system works, and what could be the main reasons for noise? So basically, in a window regulator, there was a rail guard in which there was two rows, one at top side, one at bottom side, and there was a string which is tightened up by the spring, and there was a motor which drove the window up and down. And basically, the noise is when tightened the window, there was a spring which is not fitted properly in the slot, so that create a unnecessary noise. During my intern, we worked upon it so that it can rectified. Can't you say that motor, as you mentioned, that motor is there, right? So can't you say that motor-driven mechanism, basically where rotational motion of the motor is converted into linear motion of the lift, that is the glass, right? Okay. Yes. But you didn't mention the main reason for noise. So basically, when we tightened up the window, there was a spring in the lift plate, which is not setting up properly due to the lubrication. So that's why that create the unnecessary noise when we tightened up the window. ये तो एक ही reason हुआ. That is, you are saying that lack of lubrication. I think you can say that gear wear or sometime backlash will be happen because if there is gear, then backlash is there now. So noise will Yes. become definitely. Uh, other reason may be misalignment of the components, right? And loose connection, motor vibration, right? So you have to mention 2 to 3 key points. Okay. Okay. So, okay, you did the intern in Bureau of Indian Standard. Okay. So my next question is, what is a solar desalination and what challenges are faced at high altitude? So basically, in the BIS, we have to work on four pre-standardization and one draft. So the pre-standardization is a topic suggested by us so that on which the standard can be made, and the draft is the main work that we do. My draft is the biogas, and I suggest the full pre-standardization, that is one solar desalination in which we use the solar energy to clean up the water. So there was no specific standard available for that, so I suggested that topic. One is the solar thermal collector used at the high altitude. So the standard that they have basically are the general standard. So in high altitude there was many problems such as the atmospheric temperature, humidity. So that affected the working of the equipment. So we have to work on that, and one at CNG refueling and LNG refueling nozzle and receptor. So basically, in upcoming years, we are drastically using CNG and LNG. So we have to standardize the equipment for the safety. So these are the four topics I suggested, and the main work is the biogas. So I draft a standard
with the help of MNRE paper that are provided by them. It is my basically the main work. अ, अभिषेक, आपका सोलर डिसैलिनेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ऑल्दो आपने जो पॉइंट्स अभी बताए वो क्लियर हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सोलर डिसोल्यूशन इज अ प्रोसेस वेयर सनलाइट इज यूज्ड टू इवेपोरेट saline water and then the vapor is condensed to get the clean drinkable water? Is it? No, sir. Sir, basically, this is a major a topic, a name. Sir, there was many equipment that are used for solar desalination. We have Okay. no standard in the BIS in the MED 04 regarding that. So I suggested that the equipment that cover the solar desalination must be added in the standard. Okay. अभिषेक, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके 4 से 5 सब्जेक्ट जो स्ट्रांग है, कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं वो? Sir, thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer, strength of material. ठीक है, और 5वां? सर, मशीन डिजाइन। ठीक है, तो अभी मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना। शियर फोर्स क्या होता है? सर, shear force is a force which apply parallel to the plane. ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट? Bending movement. Sir, it is bending. Sir, the when the force is multiplied by the parallel distance in between them, the effect is known as मोमेंट bending हो गया moment. ना, वो तो मोमेंट हो गया। बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेंस है ना? मोमेंट वो किस एक्सिस के ऊपर आएगा? जैसे कोई क्रॉस सेक्शन है, मैं चलो डिटेल में पूछता हूँ। उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में जो उसके अलोंग एक्सिस है उसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, एक अलोंग एक्सिस को वाई बोल रहा हूँ, और उस क्रॉस सेक्शन का परपेंडिकुलर एक्सिस जेड है। तो बेंडिंग मोमेंट कौन से एक्सिस के ऊपर एक्ट करेगा? So bending moment के x और y एक्सिस के अबाउट एक्ट कर सकते हैं। तो तुम ये बोलेगा कि बेंडिंग मोमेंट इज द मोमेंट रेजिस्टेंस व्हिच एक्ट्स अलोंग एक्सिस ऑफ द सेक्शन। Yes. ओके, ये क्वेश्चन एक कंटेनर है, मैं बना ही देता हूँ, राइट। एक कंटेनर है हमारे पास में, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ठीक है। ये हाइट ले लेते हैं जैसे एच। यहाँ पे एक छोटा सा होल है, ये जो होल है इसका डायमीटर है लेट्स से डी। तो आपको बताना है कि इस टैंक से पानी जब निकलेगा तो टैंक को इम्पटी होने में कितना टाइम लगेगा, ये कैसे कैलकुलेट करोगे, बस स्टेप बताना वन बाई वन। ये आपका हाइट है एच, एरिया है, Yes. छोटा वाला जो होल किया उसका डायमीटर है डी, और हमें निकालना है कि ये टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। ये कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताना। सर, जो टोटल वॉल्यूम है उसको हम फ्लो रेट से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। फ्लो रेट निकालने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए। तो सर वेलोसिटी हम एक स्ट्रिप मान लेंगे एच हाइट पे, और उसका प्रेशर को वेलोसिटी की इक्वेट करेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो फिर एरिया उसके स्मॉल वो। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, ये से कितनी होगी? कैसे निकाल रहे हो वेलोसिटी? सर कंटिन्यूस इक्वेशन लगा के मास वो कंजर्वेशन ऑफ मास और कंटिन्यूस इक्वेशन लगा के निकल जाएगी सर। स्क्वायर अपॉन 2g प्लस gz1 इक्वल्स टू p2 स्क्वायर g प्लस z2। कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाने के लिए आपको 3 वेरिएबल पता होने चाहिए, राइट। यस सर। 3 तो पता ही नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी, अगर मान लीजिए आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा भी रहे हो
A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 अगर लगाते हो तो यहाँ पे भी तो वेलोसिटी नहीं पता है। सर वो निगलेक्ट कर देते हैं ना सर, वहाँ की वेलोसिटी उसके मुकाबले में एरिया ज्यादा मांगते हैं। ओके, तो A1 V1 A को निगलेक्ट करोगे 0 ले रहे हो तब तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी, देखो ना। 1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, राइट। अब आपको यस निकालना है, आप V1 को नेगलेक्ट कर दे रहे हो तो V2 डॉट ऑलरेडी 0 आ जाएगी, फिर कैसे करोगे? सर, एक सेकंड सर, वेलोसिटी होगी रूट के अंदर 2gh इन ब्रैकेट A1 अपॉन A1 माइनस A2 A1 स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर सर A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये कैसे निकाला आपने? सर वो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, उससे हमने V1 की वैल्यू निकाली और फिर P1 अपॉन रो GH और V1 स्क्वायर 2gh मास कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के वो निकाल मिस बर्नौली क्वेश्चन, सॉरी बर्नौली क्वेश्चन। डायरेक्ट बर्नौली इक्वेशन लगाते तो भी मिला, राइट। क्या करना था आपको कि यहाँ पे आपने जो बोला नेगलेक्ट करना है वो बात सही है, राइट। यहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा है कंपेयर टू यहाँ पे, तो आप इसको यहाँ पे वेलोसिटी नेगलेक्ट कर सकते थे। अब जब लगाते P1 बाई 2g प्लस P1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 इस वक्त P2 बाई रूट लगाते, P1 P2 कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि दोनों एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे आप ले रहे हो, राइट। ये भी एटमॉस्फेरिक पे, ये भी कंफर्ट, तो केवल अंडर रूट कीजिए, चलो केवल अंडर रूट हो जाएगा। तो पहला कंसिडरेशन तुम्हारा सही था, इक्वेशन आपको कंटिन्यूटी नहीं लगानी थी, भी निकालने की। चलो ठीक है, तो अब भी निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सर उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे होल के एरिया से, तो हमें फ्लो रेट पता चल जाएगा। इस चार और बार सर यस सर, और फिर हम एच हाइट पे जाके DH अगर स्ट्रिप मान लें तो वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू DH, और उसको सर इससे डिवाइड कर देंगे इससे तो टाइम पता चलेगा, फिर होल H के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा उससे सर। ठीक है, परफेक्ट। मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका 5 फेवरेट सब्जेक्ट है ना, 4 से 5 फेवरेट, कहने का मतलब फेवरेट मतलब जो अच्छा लगता है वो नहीं होता है। फेवरेट का मतलब जो हमारा स्ट्रांग है वो होता है ना, जो यस सर, पढ़ने समय अच्छा लगा इसीलिए कुछ। इसको बताया था तो सर। हम लोग को रिज्यूमे में या रिज्यूमे और नहीं मांगते आप, तो आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। तो आप वैसे भी फाइनल ईयर में हो, ऐसा तो नहीं है कि कई साल का बैक है। तो बहुत ज्यादा अपने को अपनी स्किल बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे को एनसिस भी आता है, मेरे को स्ट्रेस एनालिसिस भी आता है, मेरे को हीट प्रोसेस भी आता है। क्या जरूरत है बनाने का? आपको ये होना चाहिए कि इंटरव्यू पैनल आपका जो पांच सब्जेक्ट है, वैसे भी आप गेट की तैयारी किए हो, उसके क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछे। तो आप ज्यादा अपने ये सब स्किल को बताओ ही मत, ठीक है? तो होगा क्या, वो मटेरियल साइंस में कहीं भी घुस के क्वेश्चन पूछ लेंगे और आपका वो स्ट्रांग नहीं है, तो क्या मतलब है? ठीक है? और एक छोटा सजेशन है, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स बोलने वाले हो तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स बोलना, केवल थर्मोडायनेमिक्स मत बोलना, ठीक ओके है? वो नॉकिंग ये सब में भी चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अनटिल अनलेस आपका अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स बहुत अच्छा हो, बहुत जबकि अच्छा, जो कि ठीक बहुत है। कम चांसेस देखिए है, क्योंकि गेट में उतना होता नहीं है जितना एक्चुअल में है, राइट। बस यस वो सर। फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बेसिक थर्मोडायनामिक्स ही आपको बोलना है। और क्या जैसे रामन सर ने बोला ना कि अभी सीवी को, या तो सीवी वैसे मांगते नहीं है वो लोग, फिर भी बट सीवी इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं ना सर, तो इंट्रोडक्शन उसमें पक्का पूछेंगे। इंट्रोडक्शन आपको ऐसा देना है कि आप प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो पूछेंगे ही पूछेंगे। ऐसा प्रिपेयर करो कि उसमें कुछ भी इधर उधर की चीजें ना आए, बताने ही नहीं कि हमने कहाँ ट्रेनिंग किया है, क्या किया है। वो क्योंकि 2 महीने की ट्रेनिंग में आपने क्या ही सीखा होगा, ये हमें पता है, उनको पता है, पर अननेसेसरी क्या है कि वो चीजें घुस जाए। मटेरियल साइंस अगर आपका नहीं है तो स्किल वगैरह में जो आपने लिख रखा है मटेरियल साइंस, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉपर इंटरव्यू बताओ, राइट। हॉबीज अगर ऐड करना है तो ऐसी हॉबी ऐड करो जो टेक्निकल से बहुत ज्यादा रिलेट ना करती है, हाँ, हाँ। ठीक है। क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं है कि जैसे बाकी एग्जाम तरह तरह फिर बता देंगे तो तरह के पीछे पड़ जाएंगे, पिच की डायमेंशन ऐसा वैसा नहीं उस पे एग्जाम में। वो सिर्फ टेक्निकल पे ही आते हैं, है। उसको घूम फिर के टेक्निकल में ही आना है और आपको भी घूम फिर के टेक्निकल में ही लाना है। तो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप ऐसा, मतलब सॉरी, अपना जो प्रोडक्शन बताइए वो ऐसा बताइए कि वो उनको डाइवर्ट ना करे, कोई ऐसा फुल टॉस बॉल मत दीजिए उसमें, है। बाकी सब बढ़िया है। 1 महीना लगातार मेहनत करो, है ना। और 10-10 12-12 घंटे किताबें पढ़ो, और यस होने के पूरे चांसेस।
ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा चांस है सेलेक्ट होने का और अगर हम लोग ये बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा चांस है तो आपका मेहनत जो है वो डबल हो जाना चाहिए। ठीक है, यस। कि मतलब मेरे एक्चुअल में को वो है मतलब इसको इनकैश करना अभी है मतलब। अभी हम लोग और भी बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं मतलब कंटिन्यूअसली राइट, कंटिन्यूअसली दिन में 3 से 4 इंटरव्यू चल रहे हैं। तो हमें पता है एग्जैक्टली कि बच्चे कैसे आ रहे हैं, क्या है मतलब। उस हिसाब से देखा जाए तो आपका बहुत अच्छा है और 4th ईयर में हुआ, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसका भी आपको एडवांटेज मिलेगा। हम्म, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम तो हमारे स्टूडेंट ही हो, हम सबसे कनेक्टेड ही हो। कुछ भी यस। प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम वगैरह में ओके, थैंक यू और सर।